Hello students. Now we are in the next part of the first unit, that is the measurement of impedances. And when we talk about impedances, the very first basic measurement technique is measurement of DC resistance. Okay, in the last lecture I told that I will be teaching ohm meter, but I think before going to the ohm meter, let us see the bridges for measuring the impedances, then we will go to the ohm meter. Okay, now the most of the fundamental instrument or arrangement for measuring an unknown resistance is Wheatstone bridge. Okay, let us see this Wheatstone bridge, how it's work, what are the limitations and what are its advantages. The bridge circuit is a null method. Okay, it operates on the principle of comparison. That is, the known standard value is adjusted until it is equal to the unknown value. You simply take a comparison method, and by using a different detector, you can you detect the null point, and finally it says that the bridge is in the balance condition, and you can identify the unknown impedance. Okay, now the bridge circuits are normally classified into two categories, that is DC bridges and AC bridges. Okay, in the DC bridges we have Wheatstone bridge, Kelvin bridge, mega ohm bridge. Okay, in our syllabus in the undergraduate course, we normally interested in knowing the Wheatstone bridge and the Kelvin bridge. And in the AC bridge, there are several bridges, but for measuring the different, for example इंडक्टेंस के लिए हमारे पास मैक्सवेल, हेज, ओवेंस और भी बहुत सारे होते हैं, परंतु दीज आर द मेन जिसमें मैक्सवेल और हेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कैपेसिटेंस के लिए शेयरिंग है, फ्रीक्वेंसी के लिए वेन ब्रिज है। इसके अलावा भी बहुत सारे एसी ब्रिजेस बने हैं, बट एज अ अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो नॉर्मली किसी भी एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो नॉर्मली इन्हीं ब्रिजेस से आता है। ठीक है, तो लेट अस टेक वन बाय वन। तो इस लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, हाउ इट फंक्शंस। ओके, नाउ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इट्स अ 4 आर्म ब्रिज विद इज हैविंग अ रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एंड देयर इज अ सप्लाइड वोल्टेज V। बीच में डिटेक्टर के एज अ डिटेक्टर वी यूज अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और जिसमें आप मान के चलिए जो R4 है वो दैट इज योर अननोन रेजिस्टेंस एंड R3 is a variable resistance. You can vary this resistance to detect the null. Okay, this particular arrangement is useful for measuring the resistance value between 1 ohm to 10 mega ohm. इसके लिए ये Wheatstone bridge is the best. Okay, if you want to measure below 1 ohm, this is not suitable. ठीक है, उसके लिए फिर हम लोग और सेकंड ब्रिज पे आते हैं, दैट इज कैल्विन्स ब्रिज। बट अभी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन सिंपल है कि पॉइंट डी और बी पे पोटेंशियल सेम हो। इन दैट केस देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू डी टू बी। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर आपका नल पॉइंट डिटेक्ट करेगा, और यू कैन सिंपली से दैट नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अंडर दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन होगी, दैट मीन्स VAD आपका VAB के बराबर होगा। इन दैट केस द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 दैट इज I1, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द AD विल बी I1 R1 एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB विल बी I2 R2। तो अंडर द बैलेंस कंडीशन जो कि VAD इज इक्वल टू VAB है, तो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। ऐसे आप नीचे कंडीशन, मतलब नीचे ब्रांच के लिए भी कह सकते हैं कि इफ VDC इज इक्वल टू VBC देन ऑल्सो इट इज बैलेंस। तो यहाँ पर जो VDC है दैट इज सिंपली I3 R3 एंड VBC है दैट इज I4 R4। तो I3 इज इक्वल टू I4 R4, और ये इक्वेशन और अबव इक्वेशन को हम लोग अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो if it is in the balance condition, if there is no current flowing through the DB, अगर DB से वही करंट फ्लो नहीं कर रही, इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि करंट I1 इज इक्वल टू I3
एंड करंट I2 इज इक्वल टू I4। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स I1 R1 अपॉन I3 R3 इज इक्वल टू I2 R2 अपॉन I4 R4, और वहाँ पर आप I1 और I3 को कैंसिल कर देंगे एंड I2 एंड I4 को कैंसिल कर देंगे, तो आपको फाइनली मिलेगा R1 बाय R3 विच इज इक्वल टू R2 बाय R4। इफ R4 इज योर अननोन और दैट विच इज गिवन बाय Rx, तो that will be equal to R3 R2 by R1. In this way you can determine the unknown value by the known values, और R3 को वैरी करके आप नल पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके ओके, लेट अस मूव फर्दर। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो ये बैलेंस कंडीशन है। बी में भी if you are taking the proportional resistance, again it is in the balance condition, and third case में भी मैंने proportional resistance ले रखा है 1/2 और 10/20, ठीक है। तो अगर ये proportional है, that is 1/2 का रेशियो उसमें बन रहा है, तब भी ये बैलेंस कंडीशन में, बी केस में भी 1/2 का था proportion, therefore it is again in the balance condition। डी केस में देखेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि 1/2 है और एक 10/10 है, there is a unbalanced condition and due to which 2 वोल्ट का अनबैलेंस क्रिएट होगा वहाँ पर। तो you can in this way determine the unknown resistance also। okay, now measurement errors। अब इसमें क्या एरर्स मेजरमेंट में आती हैं वो देखते हैं। इफ मान लीजिए कि जो रेजिस्टेंस आपके जो नॉन रेजिस्टेंस है उसमें कुछ टॉलरेंस होगी प्लस माइनस, जैसे फॉर R3 में लेट इट बी प्लस माइनस डेल्टा R3, और R2 में लेट इट बी प्लस माइनस डेल्टा R2, एंड R1 में लेट इट बी प्लस माइनस डेल्टा R1। तो यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, तो जो आपका एरर होने के चांसेस हैं दैट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा R1 बाय R1 प्लस माइनस डेल्टा R2 बाय R2 प्लस माइनस डेल्टा R3 बाय R3। दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द एरर इन योर फाइनल रिजल्ट। ओके, दूसरा जो मेजरमेंट में जो डिपेंड करेगा वो आपकी जो भी डिटेक्टर गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करेगा। इफ़ इट इज़ नॉट सफिशिएंटली सेंसिटिव तो आपकी रीडिंग उतनी अच्छी, मतलब उतना अच्छा वो रीडिंग अननोन का नहीं निकालेगा, ठीक है। तो योर गैल्वेनोमीटर शुड बी एज सेंसिटिव एज पॉसिबल। दूसरा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि इसमें कि ड्यू टू I स्क्वायर R लॉस इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू चेंजेस, जो नॉन रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, तो उससे भी आपका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। एंड देयर इज अनदर रीजन दैट इज थर्मल EMF, ठीक है। थर्मल EMF जो और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो ब्रिज का होता है, ठीक है, बिकॉज यू विल बी यूजिंग सम कॉन्टैक्ट एट B and D, तो उसके वजह से थर्मल EMF जनरेट होता है, वो भी कुछ एरर जनरेट करते हैं। एरर ड्यू टू लीड कनेक्शंस की वजह से भी एरर आता है, जो कि भले ही वो मिली ओम रेंज में हो, बट ड्यू टू दैट यू कांट मेजर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिलो 1 ओम। दैट्स व्हाई इनिशियली मैंने आप लोगों ने देखा कि ये 1 ओम से नीचे के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी वजह से इन जो स्पेशली पॉइंट नंबर 3, 4 and 5 की वजह से you can't measure the low value resistance। okay, that's why it's Wheatstone bridge is only good for from 1 ohm to 10 mega ohm range। okay, let us see some numerical। in the Wheatstone bridge circuit, R3 is a decayed resistance specified in the accuracy level of plus minus 0.2%, and R1 and R2 is 500 ohm plus minus 0.1%. If the value of R3 at the null point is 520.4 ohm, determine the possible minimum and maximum value of Rx। okay, let us see। सिंपली हम लोग एरर इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली सारी वैल्यूज रख दें। 50 आपको R3 की वैल्यू मालूम, दैट इज 520.4, R2 की वैल्यू मालूम 500, R1 इज 500, ठीक है। आपको एरर्स की सारी वैल्यूज मालूम है, ठीक है। R1 की दैट इज 0.1,
R2 is 0.1, R3 is 0.2. ठीक है, आप सिंपली सारी वैल्यूज लिखते चले जाए एंड यू विल फाइनली गेट द रेंज ऑफ वैल्यू दैट इज 5 to 0.4 प्लस माइनस 0.4%. तो इससे अगर कैलकुलेट करेंगे यू विल बी गेटिंग 518.322 5 to 2.48. ये वैल्यू आपकी अननोन रेजिस्टेंस की हो सकती है. दिस इज अ पॉसिबल रेंज. ओके, let us see the second numerical. A Wheatstone bridge has a ratio of 0 by 100, that is R2 by R1 का जो रेशियो है उस, अच्छा ये R2 by R1 का रेशियो, उसको रेशियो आर्म भी कहते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेशियो आर्म. एट फर्स्ट बैलेंस R3 is adjusted to 1000.3 ohm. The value of RS is then changed by temperature change. The new value of R3 to achieve the balance condition again is 1002.1 ohm. Find the change in RS due to the temperature change. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रेशियो आर्म है. इनिशियली जो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 और 1000.3 थी, फिर आपका जो अननोन रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज की वजह से कुछ नया वैल्यू आया, नई वैल्यू आई, जिसकी वजह से जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी चेंज हुई, दैट इज 1002.1. तो यू हैव टू फाइंड द चेंज इन RS. तो सिंपली दोनों केस के लिए हम लोग RS कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, RS ओल्ड विल बी सिंपली R2 by R1, सिंपली 1000.3 into 1 by 100, that will give you 10.003 ohm. And after the temperature change, new RS will be simply again वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. अब की बार जो R3 लेंगे that will be 1002.1 into 1 by 100, that is 10.021. दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, that is near about 0.018 ohm, which is the change in the resistance R3 due to the temperature change. Okay. Now the sensitivity of the galvanometer. A galvanometer is used to detect the unbalanced condition in Wheatstone bridge. ठीक है, galvanometer का काम है unbalanced condition को डिटेक्ट करना. Its sensitivity, तो फाइनली द करंट सेंसिटिविटी galvanometer की है, वो ही अफेक्ट करेगी पूरे मेजरमेंट को. एंड करंट सेंसिटिविटी इज नथिंग बट करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस. नाउ लेट अस डू अ सिंपल कैलकुलेशन फॉर अ अनबैलेंस कंडीशन. तो उसके लिए हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे इस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर डिटरमाइनिंग द गैल्वेनोमीटर करंट IG. अगर अनबैलेंस कंडीशन है उस केस में IG की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं. सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज क्या होगी. व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इफ द कंडीशन इज अनबैलेंस. VCD सिंपली क्या होगा, VAC माइनस VAD, दैट विल बी सिंपली I1 R1. VAC इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दे तो I1 R1, और ऐसे ही VAD इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 into R2, दैट इज I1 R1 माइनस I2 R2. और I1 क्या होगा, I1 सिंपली इट विल बी सिंपली द वोल्टेज अक्रॉस AB अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, जो कि V अपॉन R1 प्लस R3 होगा. ठीक है, सिमिलरली I2 विल बी सिंपली V अपॉन R2 प्लस R4. If you substitute this value of current in the above equation, you will be getting the Thevenin voltage VTH is equal to VCD, which is equal to V into R1 upon R1 plus R3 minus R2 upon R2 plus R4. तो ये फाइनली आपका थेवेनिन वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस CD आया. ठीक है, नाउ आपको थेवेनिन वोल्टेज मिल गया. अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस. ठीक है, टू डिटरमाइन फाइनली हमें निकालना क्या है, गैल्वेनोमीटर करंट निकालना है, करंट थ्रू G, दैट इज IG. अगर हमें थेवेनिन वोल्टेज मिल गया, थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल गया, तो हम लोग IG निकाल सकते हैं सिंपली VTH अपॉन RTH प्लस RG से निकाल सकते हैं. तो उसके लिए पहले RTH कैलकुलेट करते हैं. तो RTH कैलकुलेट करेंगे. तो RTH अगर आप देखेंगे, इफ यू वांट टू कैलकुलेट RTH, तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे. दैट मीन्स द पॉइंट AB विल बी शॉर्टेड एंड CD विल बी ओपन, जिसके अक्रॉस हमें मेजर करना है. ओके, तो AB मैंने शॉर्ट कर दिया और CD ओपन कर दिया.
तो इसमें R1 and R3 they come in parallel and this combination is in series with the combination of R2 parallel with R4. So finally RTH will be R1 parallel with R3 plus R2 parallel with R4, और इसको और एलोबरेट कर सकते हैं तो that will be R1 R3 upon R1 plus R3 plus R2 R4 upon R2 plus R4. Okay, now finally the Thevenin equivalent circuit will be simply VTH in the series with RTH and finally the galvanometer. So current IG flowing through the galvanometer will be simply VTH upon RTH plus RG, and RTH can be calculated from the previous equation and VTH can be calculated from the previous equation. In this way you can determine the galvanometer current in the unbalanced condition. Let us see numerical on this base. Okay, let us see numerical on this base on an unbalanced condition. The question is saying that a figure below show a schematic diagram of a Wheatstone bridge with the value of the bridge elements. Okay, the value of the bridge is given there. If I can expand, I can show you the values. And that is 100 ohm, 1000 ohm, 200 ohm and 2005 ohm. Okay, and there is a supply of 5 volt and okay, this is the values, and the question is saying that the battery voltage is 5 and the internal resistance is negligible. The galvanometer has a current sensitivity of 10 millimeter per microampere. ठीक है, पर माइक्रोएम्पियर और 10 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन होता है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द galvanometer is 100 ohm. Calculate the deflection caused by the 5 ohm unbalance. ठीक है, if you come to the back to the question. Okay, this is the entire question. So you have to find a deflection of the due to the unbalance. So first of all, we will calculating the Thevenin voltage. Thevenin voltage. Let us see what is the Thevenin voltage that comes out to be. VTH is nothing but VAD minus VAC. That is again 5 volt into for VAD is 100 upon 100 plus 200 into 5. That will give you the voltage at point D, and similarly voltage at point C will be simply 1000 upon 1000 plus 2005. That will finally give you a value of 2.77 millivolt. Okay, this is the Thevenin voltage. Now let us calculate the Thevenin resistance. That will be simply 100 in parallel with 200 plus 1000 parallel with 2005. That comes out to be calculated, after calculation gives you 734 ohm. Okay, therefore the galvanometer current will be simply IG is equal to VTH upon RTH plus RG. तो हम लोग VTH कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2.77 मिलीवोल्ट डिवाइडेड बाय RTH की वैल्यू जो कैलकुलेट हुई थी दैट इज 734 ओम प्लस द galvanometer resistance that is 100 ohm. Okay, that is finally you will be getting the galvanometer current that is 3.32 microampere. Okay, now the sensitivity of the galvanometer is given that it moves 10 millimeter for a per microampere. Therefore, for 3.32 microampere, it will move near about 33.2 millimeters. So this is the final deflection of a galvanometer due to the unbalance of 5 ohm in the branch. That is due to the 2005 ohm resistance. तो इस तरह से आप किसी भी galvanometer deflection कैलकुलेट कर सकते हैं for unbalanced condition. Let us see the another numerical. The galvanometer in the previous example, जो previous example अभी देखा, is replaced by one with the internal resistance of 500 ohm, ठीक है, and current sensitivity of 1 millimeter per microampere. ठीक है, अब हमने previous question में जो galvanometer यूज किया था उसके specifications यहाँ चेंज हो गए हैं. यहाँ पर हम लोग उसको 500 ohm and a current sensitivity of 1 millimeter per microampere का यूज कर रहे हैं. Assuming that a deflection of 1 millimeter can be observed. ओके, 1 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं, ये मान के चल रहे हैं. डिटरमाइन द न्यू galvanometer इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग द 5 ohm अनबैलेंस इन RBC. तो ये कह रहा है कि ये जो नया galvanometer क्या ये 5 ohm का जो अनबैलेंस है वो डिटेक्ट कर पाएगा. तो अगेन वी डू द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IG.
ठीक है, क्योंकि VTH चेंज नहीं हो रहा है, RTH चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, RG चेंज हुआ है। तो रेस्ट ऑफ द कांस्टेंट आर द सेम एज इन द प्रीवियस वन। तो VTH हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में निकाला था, दैट वाज 2.77 मिली वोल्ट एंड IG एंड RTH वाज 734 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर RG 500 ओम रख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन तो देखने को मिल रहा है, दैट इज 2.24 माइक्रो एम्पियर। ओके, एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज गिवन एज 1 मिलीमीटर पर माइक्रो एम्पियर। तो फाइनली आपको 2.24 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। एंड एज द क्वेश्चन वाज सेइंग दैट कि 1 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन भी विजिबल है, दैट मींस यू विल बी सीइंग द डिफ्लेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर अनबैलेंस। Okay, with this we have understand how the Wheatstone bridge is working. We have seen the limitations of Wheatstone bridge. We have done some balanced and unbalanced numericals. Okay, now let us see the Kelvin's double bridge, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि केल्विन डबल ब्रिज में हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करते हैं जिसकी वजह से वो हम 1 ओम के नीचे भी मेजरमेंट कर पाते हैं। देन देयर इज अगेन इट इज मॉडिफाइड टू केल्विन्स डबल ब्रिज, जिससे कि और मतलब कि हम लोग माइक्रो ओम रेंज तक मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो ये 2 और DC ब्रिजेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग रेस्ट ऑफ द DC ब्रिजेस पढ़ेंगे।